ګرانو کتونکو تاسو ګوره دا لوګي دا د یو لویه انډسټري ده د هغې نه خیږي او دا ماحول کې ځي او دا ماحول ګنده کوي. ډېر لوی کاروبار کوونکي خلک دي. نننی خیبرواج به زمونږ د داسې زورورو خلکو خلاف وي کوم چې ماحول ته هم نقصان رسي او نورې مسلې پکې هم وي. موږ سره ډایرکټر جنرال ای پی اے سمیع الله وزیر صاحب موجود دی. سره نن خو ډېر زورورو خلکو ته تګ دی او ځکه چې دا لوګي خو دا ښکاره دی او ورتګ هم دی. نو ننني به موږ څه قسمه کاروایانې به وي څه به کول وي لږ مو دا خلک خبر کړي. ملک صاحب ډېره مهرباني. زموږ د نن د راتلګ یو دوه مقاصدو چې موږ انډسټري وګورو چې آیا د اپروول شته او که نه. د قانون مطابق پهله ضروري کار دا دی چې انډسټري د ای پی اے نه اپروول والي. اپروول نه پس بیا دوه میجر شیونه دي چې هغه کې یو امیشن دي او یو پکې ویسټ واټر دی چې د کوم یو اوبه استعمالوي هغه اوبه نالې ته ځي یا دغه ته ځي. نو د هغه اوبه چې کم از کم داسې چې پراپر ټریټ شوي پاکې صفایي. او دومره خبره دا ده چې د کوم د امیشن کوي لوګي وځي نو لوګي په یو لیمټ چې دی چې کوم د ای پی اے سیټ کړی دی د هغه مطابق وي. نو زموږ دا غټه مسله ده چې موږ لاړ شو لوګي سپین شي چې کله بیا موږ راوځو نو هغه لوګي بیا دغه شي. سر چې دلته ستاسو دفتر باندې دلته پکار دی تاسو هسې راګرد لوګي به سپینېږي لکه برکتي ده. ګرانو کتونکو ګورو به کاروایانې به هم تاسو ګورئ خو دا درته ښیمه دلته کې چې دا لوګي څنګه سپینېږي او څنګه دا تورېږي. اوکې سر راځئ چې ورځو پته ګرانو کتونکو تاسو وکتلو دغه شانتې د ماحولیاتي آلودګۍ خلاف او چې کومې لوی کارخانې دی په ضد باندې کاروایانې شروع دي. سمیع الله وزیر صاحب را سره هم موجود دی. خو چې مونږ کومې کارخانې ته راشو یو خو دا کارخانې ماشاءالله په سوونو په زرګونو خلک پکې ناست وي خو ور بند شي ښه ورته پته ده چې سرکاري ګاډ هم دی مثال پولیس هم دي هر څه دي خو هغه بند دي. لوګي توري एकदम سپین شي اوبه خیرنې وي एकदम پاکې شي. نو مقصد د دې دا دی سره چې دلته کې هر څه دې سره ټیک سیسټم هم شته خو دا کس دی خراب سیسټم تاړي. په قانون کې دا زما په اکټ کې دا لیکلي ده چې زم کله زما انډسټري به بغیر دغه نه ما سره به تعاون کوي ما ته به اکسس راکوي. که ان کیس د ما ته اکسس دغه نه کړي یا زما په اکسس کې رکاوټ جوړ کړي دې باندې ښه ټیک ټاک دغه کسان جیل ته ځي جرمانې پرې لګي اف آی آر پرې کېږي. अपना काम तुम कौन हो इधर क्या काम करते हो यार लड़ाई की बात नहीं गलत काम करे तुम छोड़ मड़ा सा ګرانو کتونکو دا د ټیلونو کارخانه ده او تاسو ګورئ دي چې په لوی تعداد کې دلته کې کار کوي. کیا دی سر ٹھیک ٹھاک تخیل لگا کلیوالا کم دے دیزیم سر کارخانو افریده کشنوالی افریده سر زنده باد دوڑا موڑا ماسک چوا. ګرانو کتونکو دا ګوره چې دا ټیرونه جوړیږي او سټارټ دی یار دا مو نو داسې کار کوو چې تاسو ته ښایو چې دا غټې غټې کارخانې دي او مزدور سره پکې څه کېږي. تنخواہ منخواہ وقت میں ملتا ہے کہ نہیں؟ بالکل A1 سر A1 ایک ہم تاریخ کو یکم 2 تاریخ کو مل جاتا تھا. ایک ہم یا 2 بالکل آخری 2 ڈیٹ ہے. آخری 2 تنخواہ ملویږي تنخواہ ملویږي او ملګری پکې خپل خو چا خو ایو ملګری پکې له خپل خو څه شو ایو خو په کیمرا کې راي ومانه یې چې کم یو لري هغه ډاکټر لا بوزه کنه ها پای کې درا ور ټریټمنټ بالکل په وخت باندې نه ان شاء الله الحمدلله تنخواه خو په ټیم ملاوي. د هر انډسټری لپاره خپل خپل هیڅ زمونږ درې کټګوریز دي. یو وړې دي یو درمیانه دي یو غټي. لکه څنګه دا انډسټري ده د دې ځان له سپی ده
دې لپاره خپل هیڅ په یک کې شیډول ورکړی شوی دی کې ډیفاین شوی منیجر صاحب او دا څه کمپنی د خیر سره دا سیرامکس انډستری دی کې ټایلز جوړیږي ټایل جوړیږي صحیح मैं कहता हूँ कि आपको 24 आवर जो भी कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ अगर हमारा ब्लैक या कोई स्टील हो उसी को सील कर देना। मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ सील 24 आवर तो कैमरा लगा دا کوم سار کړو نه خنوا نه سر په دا روزانه مونږ داسې چې سر راشو دا پکاره چې وختي دی کړوا وختي مونږ رالو مونږ له ریکارډینګ کوسم خیرنو خو یو سم ماشاءالله صفاک ما دا وګوره څنګه خیر 3.25 करोड़ रुपए की मंगवाए हैं सिर्फ रीडस्टिंग के लिए। ये सिस्टम है 3 साइक्लोन वॉल लगी हुई है और जब ये चलता है तो बिल्कुल स्टीम आएगी 24 आवर्स किसी टाइम भी आएंगे यहाँ नहीं है इसमें कूल यूज करते हैं कूल अच्छा इसके अलावा कोई ऑप्शन इससे बेटर ऑप्शन हो सकता है टोटल बेटर सिस्टम है सर। ये जो सिस्टम है ना ये सेरामिक्स में लेटेस्ट सिस्टम है। ये हम 2022 में ये हमने लगाया ये वाला तो दिस इज अ लेटेस्ट सिस्टम है। ये वाला है पीछे भी हमारा साइक्लोन बने हुए हैं तो ये क्योंकि ये ज्यादा हमारा मट्टी का एरिया यही है क्योंकि इसमें लोडिंग वो करना है अंदर आ रहा है। एक तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी क्योंकि ये एरिया में डस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है जिसकी वजह से मुझे जो ये वर्कर है ना उनकी सेहत की का मुझे है। हम तो सर असल में असल की सर मैं एक बात उर्दू में गड़बड़ बोलूंगा। असल में इन लोगों का काम है माहौल को साफ रखना। तो अगर यहाँ पे डस्ट को और यहाँ के लोगों को माहौल साफ नहीं मिल रहा है ना तो ये भी मसला है। मैं आपको बता सेरामिक्स फैक्ट्री में आप जाएंगे ना इतना साफ बोलिए क्योंकि सर इसमें तो टोटल है ही मट्टी से बन रहा है ना। आप देखें ना 10 किले हैं हमारी जो हम यूज करते हैं तो 10 किले का मतलब है कि ये सारा हमारा लोडिंग सिस्टम है। आप देखें ना ऊपर जितना भी वो बड़े पाइप नजर आ रहे हैं सारा डिडस्टिंग सिस्टम है ये वाला। आई नो दैट लेकिन इसको इम्प्रूव किया जा सकता है क्योंकि ये कि जितने भी जो वर्कर काम कर रहे हैं ना अब जो पहले हमारा जो मसला था जो ये हमारा ड्राइंग सिस्टम है पहले इनको पता है इन साहब को ठीक है सर। अब हमने ये किया वाशिंग सारा ये यहाँ जाके वो नीचे टैंक है अगर यू कैन शो इट पेशा वो वहाँ पड़ा हुआ है। अब वहाँ से हमने वो पाइप के जरिए सारा पानी दोबारा इसको इंटर कर दिया। जितना स्मेल अभी भी आ रही है अभी 3-4 दिन से ये चला नहीं है ना ये वाला उस वजह से ही है। स्मेल जो है ये कोल यूज करते हैं उसकी सक्सेस की वजह से। जी आप लोग कोल को एज ए फ्यूल यूज करते हैं कोल यूज करते हैं कोल यूज करते हैं। हाँ तो ये जो स्मेल है ये सक्सेस का है। नहीं सर नहीं सर बिल्कुल सल्फर ट्राइऑक्साइड डाइऑक्साइड जो भी है सल्फर लेस देन 1% है हमारा। नहीं आप लोग मेरी बात सुनिए जो आप लोग इंपोर्ट करते हैं या परचेज करते हैं उसमें आप लोग हमें बताइए कि इसका जो कंपोजिशन है सल्फर कंपोजिशन इज लेस देन 4% और ग्रेटर देन 4%। जो सल्फर है वो लेस देन 1% है बिकॉज ये जो प्लांट है ये तकरीबन 13.5 करोड़ रुपए का है तो ये तो हम पाकिस्तान में तो बन ही नहीं सकते। इंपोर्टेड कोल आप लोग यूज करते हैं अफगान लोकल तो हम लोकल का सल्फर भी 4% है। اسد भाई تاسو لکه مونږ ته کې دا ټیکنیکل خبرې دي کنه او په دې پښتو کې مونږ ساده پوي کو ځکه چې دا پروګرام زیاتره دا پښتانه ګوري او بلکې ټول پښتانه ګوري پنجابي به نه پويږي دي کې کوم ټیسټونه تاسو وکړل چې هغه مونږ مجبور شو یا تاسو مجبور شو چې نن دلته کې د چاپا یا انکوایري یا هغه راغله دي کې څه مسله و بیسیکلی خو د دوی امیشن هم شته دی او افلوئنت هم شته دی د افلوئنت ټیسټونه ول زما سټاف وکړل په بي پی ای لیبارټری کې نو پای کې دوی سلفاید او ټي اس اس چې کوم دی هغه په وایلیشن کړهلو دغه په بنا باندې موږ د دوی نن انسپیکشن وکړو سیکنډلی د دوی امیشن هم شته دی خو امیشن ریسورسز موږ سره فیسیلیټیز نشته دی هغه لا سټیل پینډینګ دی خود وی کول ایز ا پیول استعمالي دا غینه جنریشن کیږي د ساکسز او سی او ان ناکسز
along with the suspended particulate matter जो the mist चिकम जुड़ी की that dust loaded और चकल हवा तवर शिनो आगा और dust तकन वर्ची मतलब لنډه ساده پښتو کې دا ویل شي چې دوړه کوي او هغه ماحول سره ټیک نه ده. صحیح بالکل. ته پوه شوې کیسه باندې راځه. او نوم دې څه دی هلکه؟ نوم دې څه دی؟ اکرم و؟ اکرام بس راځه. دې دا وایي چې دا مونږ بټو والا باندې خرڅوي که نه، نو بټو والا بیا چېرته بیا به کې اور مور ولګوي، نو هغه تا ته ښه پته ده که نه چا شیونه بیا راوځي او دغه کېږي. زه درته دا وایم چې بجای دی چې په بټو یې خرڅوي، نو چېرته ډمپینګ سایټ ورته جوړ کړي چې پراپر مطلب ډسپوزل کېږي چې دا شی ډېر خطرناک دی چې بټو کې سوځي نو خو بیا مسله جوړېږي. تو آپ لوگوں کی وجہ سے پھر بھی وہ ہوتا ہے نا جب آپ بیچتے ہو آپ کو پیسے ملتے. हम भाई वो एक हमारा डंपिंग का हमने एक एरिया बनाया हुआ है, असल में हमारा अपना कंपनी का डंपर है, उसका इंजन खराब हुआ है जिसकी वजह से, क्योंकि हमारी स्पेस भी नहीं है ना यहाँ पे, स्पेस भी तो बहुत कम है. तो हम ये मैं आपको बताऊं, जब ये हम अप्रूवल देते हैं ना अंडर द एक्ट, तो उसमें ये जो वेस्ट होता है वो वेस्ट में हम उसको फिर डंपिंग साइट प्रपोज करते हैं कि आप उस डंपिंग साइट की अलग से अप्रूवल लेनी पड़ती है ताकि उस डंपिंग साइट से फिर लोगों को और मसाइल ना हो. एक बड़ा इजी तरीक़ेकार है, लेकिन अगर कोई उसको फॉलो करे. आजकल टेल की क्या रेट है? टेल अच्छी टेल ये मुझे कोई इतना है क्योंकि मैं प्रोडक्शन को देख रहा हूँ ना, सेल डिपार्टमेंट अलग है, मतलब कारोबार अच्छी जा रही है. कारोबार इंतहाई खराब जा रहा है सर. अब नहीं जाएगा कि ये बटो वालों का नहीं 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 रियली. अभी आप देखेंगे बाहर ढेर लगा है टाइल का, सेल है ही नहीं. अरजान करो लोग ले लेंगे. ये मैं नहीं सर, ये हमारा जो है ये 120% मैं आपको कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान का नहीं है. वगरना तो हम बॉर्डर पे रुकते हैं, वहाँ पर जो डंपर आते हैं तो वो फिजिकली देख लेंगे नेकेड आई से. अब इसमें प्लास्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 टन में कितना प्लास्टिक आ रहा है? मेरी बात सुने ना. नहीं, आप जवाब दे, मेरी बात सुने नहीं, आप जवाब दे. है ही नहीं है ये जो सर सुनो ना, ये जो हमारे चैन है ना, उस चैन की सर्कुलेशन जो हमने ठीक किया ना, उसको कि हमारे डस्ट कितनी है तो सारा हमने स्क्रैप उठा के डाला है. वो आपको चेक कराता इसमें डालते हैं, इधर से कहाँ जा तो ये जो अभी प्लांट रुका हुआ है ना, इसकी मेंटेनेंस की है ना, इसकी जो चैन है ना हमारी, क्योंकि ये चैन चलता है ना, तो ये जो है ना, ये देखिए ना, ये उनका वेस्ट है. आमिर साहब ये कह रहे हैं कि जी हम इसको बटों को सेल आउट करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए. जो भी है ना, अभी देखिए ना, ये ना मैं ले नहीं रहा है ना, लेट मी कंप्लीट. मैं ये कहता हूँ कि इसको इसका प्रॉपर, चूंकि वेस्ट बहुत ज्यादा है, इसकी कोई प्रॉपर डंपिंग साइट होनी चाहिए जहाँ पे मतलब ऐसी जगह पे हो. डंपिंग साइट की एपीए में अपनी रिक्वायरमेंट है कि वो आबादी से ना हो, उससे लोगों को मसाइल ना हो. तो मेरा ख्याल है अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि सूबे के जितने भी क्रश प्लांट हैं 900 के करीब बनते हैं, तो वो उनको अगर वो पैरामीटर फॉलो नहीं करते उनको आप बंद कर दें. इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. इसमें एक तो उनका नॉइज़ होता है, जो कि ये क्रशिंग होती है तो नॉइज़ पोल्यूशन होता है. साथ में वो फिर डस्ट पोल्यूशन, फिर देखिए इसके अलग पैरामीटर होते हैं, वो पार्टिकुलेट मीटर होते हैं जो कि न सिर्फ इनको अफेक्ट करते हैं, जो साथ में जो इंडस्ट्रीज है उनको भी अफेक्ट करती है. तो इसकी भी मेरा ख्याल है कि इसकी भी अप्रूवल नहीं, लाइक अगर इसमें किसी इंडस्ट्रीज में 2-3 काम हो रहे हैं तो फिर वो जो होता है ना, उसकी फिर अलग अलग काम के लिए उसका अलग अलग अप्रूवल होता है जो कि उस इंडस्ट्री वालों ने लेना होता है. इसमें सर एक चीज ये करूँ कि ये जो हमने रेगुलर यूज नहीं करते हैं, ये हमारा जो ग्लेज का जो होता है ना, उसमें तो कोई अगर महीने में अगर कोई 2 घंटे या 4 घंटे हम चलाते हैं, वो भी जब इन्वायरमेंट जरूरत हो तो कंटिन्यू नहीं चलता है ये. नहीं, जो भी है लेकिन एक एक्टिविटी तो हो रही है ना. देखिए ना, इसमें इतना कितना डस्ट वो जनरेट होगा. साथ में जो साथ में जो इंडस्ट्रीज है ना, वो भी शायद उनका काम बड़ा सोफिस्टिकेटेड होगा, बड़ा वो होगा. तो इस डस्ट से जो अदरवाइज सुने मेरी बात सुने, मैं तो आपको ये कहूँ कि देखिए ये जो आपका सिस्टम यहाँ पे डस्ट लगेगा, आप इसको अगर वो टफ टाइल्स लगवा के कुछ चीज़ें लगवा के जो डस्ट यहाँ से निकलती है, तो मेरे ख्याल में वो छोटी सी इंटरवेंशन से चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है. क्योंकि जाहिर बात यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगी साथ वाली इंडस्ट्री को उसका मैं आपको एक और बात बताऊँ, अक्सर इंडस्ट्री स्टेट में ये जो पोल्ट्री फीड वाले कारखाने होते हैं, छोटे छोटे कारखाने होते हैं, तो उनसे जो स्मेल निकलती है वो 1 किलोमीटर में मेरे ख्याल में जितनी भी इंडस्ट्री होती है वो इंडस्ट्री वहाँ पे रह ही नहीं सकती. तो ये सबसे बड़े मसाइल है. जी सर जी. हर सड़े दखपल अमाल जिम्मेदार दे. बिल्कुल ठीक है. ठीक शो ना, हर सड़े जिससे कई का गलत कई का सही कई अगा दखपल अमाल जिम्मेदार दे. जाते को हम खपल वर्कर सर भी आ जाते को. ये देख रहे सर, ये
क्योंकि मैंने कहा ना हमारी मशीन इस कोयले से बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो ये हम जिससे ले रहे हैं, बल्कि आप उसका एड्रेस भी यहाँ पेशावर का बंदा जो हमें सप्लाई कर रहा है। हाँ कोयला जल्दी जोड़ करते हैं एक इंडस्ट्री में आपके साथ 20 सप्लायर होंगे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के, लेकिन हमें जो अंदेशा है वो यही है कि चूँकि इस इंडस्ट्री में वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा हैं। आपका क्रश प्लांट बिल्कुल नेकेड है, कोई पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम नहीं है। दूसरा, आप कोल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल खालिस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके साथ कोई आप ज़रूर कोई चीज़ ऐड करेंगे, तो वो क्या परसेंटेज है, उसकी कितनी परसेंटेज है और इसकी वो हैं। और दूसरा, इस आपका पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम आज तक हमें पता नहीं चला। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें इन्वायरमेंटल अप्रूवल बता दें। अप्रूवल में पूरी इन्वायरमेंटल असेसमेंट होती है, उसके हर एक चीज़ की, हर एक नुक्ते की असेसमेंट होती है, वो आप हमें नहीं दिखा रहे हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो चेक करते हैं, सारी बातें फ्यूचर वाली सर मैं तो आपको यहाँ पे जो मैं आया हूँ ताकि आप लोगों को गाइड करूँ। अच्छी बात है सर। देखिए आपका वेस्ट भी है, आपका क्रश प्लांट भी बगैर इलीगल लगा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपका डस्ट सिस्टम भी है, जो कि मेरा ख्याल है कि कम से कम वो टफ टाइल्स लगा के ये चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके क्रश प्लांट से, नॉइज से और डस्ट से, ये आपके साथ में जो इंडस्ट्रीज़ है वो इफेक्ट हो रही है, ठीक है ना। ये तो बहुत ही खतरनाक है कि नहीं जो भी है ना, अगर इसकी कंप्लेंट आती है ना हमारे पास, आप तो नहीं, चूंकि रेगुलेटर तो मैं हूँ तो मेरे पास आते हैं, आप अपना जो कर रहे हैं वो तो एक अलग केस है कि जी मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन अगर मेरे काम से किसी दूसरे इंडस्ट्री वाले को, चूंकि अगर ये बेवरेजेस का कारखाना है जो भी है, तो डस्ट जो है वो शायद बहुत खतरनाक है इनके लिए, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम बड़ा सफेद, छोटा सा डस्ट उसके सिस्टम में शामिल हो गया, तो वो पूरा उनको पूरे टैंक्स बनाते हैं, फिर उनसे फिलिंग करते हैं, तो आपको पता है इसकी इम्पैक्ट क्या आएंगे। अगर सर जोरम होता है, 1 मिनट भी करो, 10 मिनट भी करो, साल में मैं करो। आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपका क्रश प्लांट जो है वो अप्रूवल के बगैर है, ठीक है। आप 1 मिनट चलाएं, 10 मिनट चलाएं, आई हैव नो कंसर्न विद दैट। आपका वेस्ट पड़ा है, आपका इतना ज़्यादा वेस्ट है, तो वेस्ट का डिस्पोजल का मैकेनिज्म आपके पास होना चाहिए। आप ये वेस्ट चूंकि हैज़ार्डस है, आप किसी को सेल नहीं कर सकते, आप इसको डिस्पोज करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्या इंडस्ट्री के पास अप्रूवल है कि नहीं है, जो कि हर इंडस्ट्री के पास होगी। बाद में हम फिर एमिशन, वेस्ट वाटर, उन चीज़ों के ऊपर आएंगे, लेकिन पहले तो एक कारोबार है वो कानूनी है कि नहीं है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये हम आपको एक हम आपको नोटिस देंगे कि जी आपके पास अप्रूवल नहीं है। नहीं हम देंगे, मैं देंगे ना जो स्लो मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए आपके पास आपकी इंडस्ट्रीज है, आपके पास अप्रूवल है कि नहीं है, आपका क्रश प्लांट है उसके अप्रूवल है कि नहीं है, आपका वेस्ट वाटर है वो उसका अप्रूवल है कि नहीं, सॉरी वेस्ट जो आपका जो मटेरियल है, अच्छा आपके पास जो डस्ट की जो प्रोटेक्शन गियर जो वर्कर्स के वो आपके पास नहीं है, तो ये नोटिस हम आपको देंगे, फिर आप उसका हमें जवाब दें। अगर आपने अप्रूवल लिया तो हमें वो नोटिस लगा दें कि जी हमने अप्रूवल ले लिया है। अगर आपके पास क्रश प्लांट का अप्रूवल नहीं है तो आप कह दें कि जी वो एक प्रोसीजर है, आप लोगों को पता होगा कि जी हमने अडॉप्ट कर लिया है, हम वो 45 डेज में मिलता है वो जो भी तरीका है। आपका वेस्ट डिस्पोजल का जो मैकेनिज्म है, आप डंपिंग साइट प्रपोज करेंगे, उसकी अप्रूवल लेके आप करें, अपना कारोबार करें। हम तो ये चाहते हैं कि आप लोगों को फैसिलिटेट हो, लेकिन अगर आप अप्रूवल भी नहीं लेते, आपका क्रश प्लांट भी, वेस्ट भी, वाटर भी, नॉइज भी, जो भी चीज़ें हैं वो भी नहीं है, साथ में आपकी इंडस्ट्री की वजह से दूसरी इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है, तो फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर मेरी मजबूरी है, क्योंकि फिर वो एक नहीं होता, एक कंडूसिव एनवायरनमेंट फिर नहीं होगा बिजनेस के लिए। मेरा काम ये है कि मैं सारे इंडस्ट्रीज को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूं, और जो मैंने ये जो पोल्ट्री फीड वाली जो इंडस्ट्रीज़ है उसके ऊपर भी मैंने हरिपुर में एक्शन लिया था, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज कंप्लेंट कर रही थी कि इसकी स्मेल की वजह से हम काम नहीं कर सकते। वो अगर इलीगल भी हो तो वो स्मेल का उसने कोई तोड़ निकालना है, क्योंकि मेरे काम की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं हो। हमारे मजहब में भी ये है, हम सिंपल सी बात करते हैं। आपको टाइम, अच्छा सॉरी लास्ट बात, ये हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम ओवरनाइट आप चीज़ें करें, हम आपको टाइम लाइन देंगे कि वो एक रीजनेबल टाइम लाइन हो कि इस टाइम लाइन में आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये काम हमें पता होता है कि ये काम इतने दिनों में हो सकता है।
तो वो नोटिस में हाँ तो नोटिस में हाँ गाइडेंस भी देंगे, टाइमलाइन भी देंगे, सजेशन भी देंगे फॉर इम्प्रूवमेंट, ताकि आपकी इंडस्ट्री चले, लेकिन साथ में जो कानून है उसकी कंप्लायंस भी साथ साथ। ګرانو کتونکو تاسو ګورئ چې موږ دلته کې د ډایرکټر سمیع الله وزیر صاحب سره موجود یو او د غټه غټه انډسټری ویجی او د ګورنو روپو چې د دې خلکو کاروبار دی، روزګار دی. ګورنو هم کوم وي د ګورنو روپو ټایرونه جوړیږي، د سيزونه جوړیږي، خو بیا د پښتو یو متل دی شپه وجره به نور تاسو پوهیږئ دا کرش ماشینونه د سيزونه دا لګولي شوي دي د دې نه چې کومه دوړه وځي ماحول ګنده بدي خروره بهر ملکونو کې اوسېږي، پیسې میسې ګټي، مزدور تباه، هر څه تباه او دا غټې غټې فیکټرۍ دي. نو لږ دې غټو غټو خلکو سره ګورو چې د انډسټري دا ټیکي کې نه ټیکي د دې خلکو د لاسه موږ ډېر واړه یو، ماحول یې ډېر ګنده کړی چې نن شی وران دي. سردار رضا